Hello friend, welcome to another tutorial. In last video we will discuss about the mode of DNA replication. Today we will discuss about the basic requirement of DNA replication. Let us start with the enzyme. Which enzymes are required during DNA replication? So as we know, there is a requirement of DNA A protein, SSB protein, DNA B protein, DNA C protein, DNA G protein for the initiation purpose, and the DNA polymerase enzyme, SSB proteins, gyrase enzyme, and ligases for the elongation purpose, and the TUS and topoisomerase are required during the termination. Let us discuss one by one. What is DNA A? What is DNA A? DNA A is a protein. Which recognized the ORI site. ORI site means origin of replication site, यानी कि वो प्रोटीन जो डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट को ढूंढती है वो क्या कहलाती है? डीएनए ए प्रोटीन. इट इज़ वेरी नेसेसरी and it will not come along. It will, as you find the ORI site, it brings the DNA B protein. DNA B is also known as helicase. DNA B is also known as helicase, which break down the hydrogen bond of a DNA or two strands of a DNA and make them single strand. That is the role of DNA B protein. But DNA B protein could not come along. It also come with DNA C, another protein, which is known as the helicase loader, which is known as helicase loader. So we can say DNA B and DNA C come together and known as the helicase loader because it required some ATP molecules and some divalent ions, Mg plus or Zn plus ions. To break down this ATP, and energy is released, which is used to break down the hydrogen bond between two strands of DNA. तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है. As the helicase is loaded over the DNA, it will bring DNA C after loading the helicase gets separated from the DNA and it will bring the DNA G protein, which is also known as DNA primase. RNA primase. This protein have the property of RNA polymerase, which add on the RNA primer on a DNA template. So these proteins are required during this process. DNA G, as the DNA G is add the primer, it will bring the another protein that is known as the
DNA polymerase. Let us discuss about the what is origin of replication site. What is origin of replication site? Origin of replication site origin of replication site in a यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सॉरी इन ए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की अगर जो हम बात करें तो दे हैव ओनली one origin of replication site. As we know that the bacteria or as the DNA replication is studied in Escherichia coli bacteria, and we find that the DNA of Escherichia coli is circular. It is circular, either chromosomal DNA or plasmid DNA. Both are circular in nature. And in this DNA there is a one site where the DNA replication can be originated, and this site is known as ORI site. ORI site, and this ORI site contains 245 base pairs. 245 बेस पेयर इस जगह पे मौजूद होते हैं जहाँ पर डीएनए में रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहाँ पर है, इट हैव 245 बेस पेयर्स, एंड इन दीज 245 बेस पेयर्स like this there is the some consens sequences. In the starting there is the 13 nucleotide, that is known as 13-mer. Again there is a 13-mer, and again there is a 13-mer. There is 13 consens sequences in 3 boxes, and the 5 9 9 9 9 and 9, that is known as the 9-mer unit, and this is known as the 13-mer unit. So the DNA A protein, as we already told about the DNA A protein, the DNA A protein recognize this site. These are the consens. Consens means conserve sequence. If any mutation in these 13-mer or 9-mer units, it may cause change, or the DNA replication is not occur. DNA replication नहीं होगी अगर जो इनमें कोई म्यूटेशन होती है, तो 13-mer यूनिट में और 9-mer यूनिट में. The DNA A protein bind to these 13-mer unit, and when it bring the helicase DNA B protein, it cause melting in 19-mer unit. This is known as the ORI site of prokaryote. If we talk about the eukaryotes, if we talk about the origin of replication site of the eukaryote, it is known as the autonomous replication sequence or site, ARS. It is known as the ARS, autonomous replicating sequence. और अगर जब बात करी जाए इन यूकैरियोट, द मोस्ट स्टडी ऑर्गेनिज्म इज यीस्ट. और जब यीस्ट में देखा गया तो उसमें 400 ऐसे जगह हैं जहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन शुरू होती है. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो कितनी है? 400 ऐसे जगह हैं. जैसे कि अगर जो हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं तो उनमें केवल कितनी जगह थी ओआरआई साइट के लिए? 1. और अगर जो यूकैरियोट में हम यीस्ट की बात करें तो वो ई कोलाई की बात थी, और ये यीस्ट की बात है, तो यहाँ पर कितनी है? 400. ठीक है. वन डिफरेंस इज दैट. अनदर डिफरेंस इज दैट द यूकैरियोट हैव 200 बेस पेयर ऑफ ARS साइट. जो ARS साइट हैं उनमें कितने बेस पेयर हैं? 200 बेस पेयर हैं. जबकि प्रोकैरियोट में कितने थे?
45 बेस पेयर है। तो एक ये बात डिफरेंस की है। दूसरा देखो, जो यहाँ पर जो कॉन्सेंट सीक्वेंस है वो केवल एक है इनमें से, हर एक इस रेप्लिकेशन में ये 200 बेस पेयर हैं, इनमें से एक कॉन्सेंट सीक्वेंस है, वो है स्टार्टिंग के 11 न्यूक्लियोटाइड। इनकी लोकेशंस को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, जैसे ए बी सी। जो कॉन्सेंट सीक्वेंस है 200 न्यूक्लियोटाइड का, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए बी और सी। और ए जो भाग है, इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। इट कंटेन 11 न्यूक्लियोटाइड base pairs, and these base pairs have consonant sequence and which is 80 rich. Both prokaryote or either eukaryote, they have 80 rich sequence in ORI site, because it is very easy to meld this DNA at 80 rich site, as there is only 2 hydrogen bond in comparison to GC where is the 3 hydrogen bond. So it is easy to break with the less effort or less energy is the 80. तो जितने भी ओराई साइट होंगी वो क्या होती हैं, 80 रिच होती हैं, ये बात तो याद रखनी है। अब दूसरा देखो, जो कॉन्सेंट सीक्वेंस है हमारे यूकैरियोट में, उसमें 3 पार्ट में उसको एक पार्ट है जो ए है और उसमें 11 न्यूक्लियोटाइड हैं जो कॉन्सेंट है। बाकी के बी और सी में कोई कॉन्सेंट सीक्वेंस मौजूद नहीं है। तो एक अगर जो इस 11 बेस पेयर के ए साइट में एनी म्यूटेशन होती है, कोई भी म्यूटेशन हो जाती है, तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगी और इस साइट वर्क नहीं करेगी, डीएनए ए उधर बाइंड नहीं करेगी, ना ही डीएनए हेलिकेज बाइंड कर पाएगा। तो डेट इज नोन एज द origin of replication site in yeast or eukaryotes. Similarly, the B site where the melting is started, यानी कि हेलिकेज इस जगह से डीएनए को मेल्ट करना शुरू करेगा, और ORC ओरिजिन रिकॉग्नाइजेशन का काम करती है, जो दूसरी प्रोटीन होती है ORC को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। तो डेट इज ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट एंड वेयर द डीएनए ए प्रोटीन इज बाइंडेड। The another, what is the SSB protein? As the DNA get melted, तो this protein bind to, अभी आगे पढ़ेंगे, जैसे कि ये एक DNA है अपने पास, तो जहाँ DNA रेप्लिकेशन शुरू होने वाली होती है, डेट इज नोन एज द रेप्लिकेशन बबल। अभी आगे डिटेल में बात करेंगे। तो ये इस जगह को आकर के एसएसबी प्रोटीन बाइंड कर जाती है, ताकि डीएनए के जो मेल्ट हुए स्टैंड है वो दोबारा से अपनी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग ना कर लें, इसलिए ये एसएसबी प्रोटीन होती है। ठीक है। एंड बी जो होती है वो डीएनए के उसको तोड़ देती है, बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देती है। एंड सी इज़ द लोडर, जब उसको लेके आती है। तो व्हाट वी टॉक अबाउट द डीएनए, उस जी के बारे में हमने बात कर ली। प्राइमेज एक 15 से 35 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए प्राइमर लगाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई नॉट डीएनए polymerase start the replication itself. Why it required primer? और वो भी प्राइमर किसका है, आरएनए का। चलो आप जरा इसके बारे में कमेंट करके बताना कि ऐसा क्यों होता है। Otherwise, I will talk about this in another video where I will discuss about the structure of DNA. और यहाँ भी बता सकता हूँ, क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और देन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, थोड़ा सा बता देता हूँ। और जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो पहले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, तो उसको सामने कोई चाहिए 3 प्राइम पर OH चाहिए, जो कि वहाँ मौजूद नहीं है। तो डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड 3 प्राइम OH एंड द डिटेल आप बता सकते हैं। और आरएनए पॉलीमरेज को कौन चाहिए, सामने न्यूक्लियोटाइड चाहिए, तो वो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बाद में फिर तीसरा बॉन्ड वो बनाता है
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो डीएनए के स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो उसमें हम इस बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास, तो आरएनए पॉलीमरेज डीजी की बात हो गई। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने पास, इट इज़ एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द डीएनए पॉलीमरेज। बहुत सारे डीएनए पॉलीमरेज की डिस्कवरी हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं हम। पहले देखो, डीएनए पॉलीमरेज जो है, वैसे तो 5 डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की अभी तक खोज हो चुकी है। मतलब बैक्टीरिया के अंदर डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 एंड 5 डीएनए पॉलीमरेज अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज की डिस्कवरी, जो सबसे पहला जो डीएनए पॉलीमरेज था वो डिस्कवर किया था भाई साहब कॉर्नबर्ग ने। एंड इट इज़ आल्सो, दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो नोन एज द कॉर्नबर्ग एंजाइम। कॉर्नबर्ग एंजाइम। एंड ये इन्होंने डिस्कवर किया था ई कोलाई बैक्टीरिया में। किस में डिस्कवर किया था? ई कोलाई बैक्टीरिया में। और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। He got a Nobel Prize for the discovery of polymerase enzyme, and the polymerase enzyme contained 900 to 8 amino acid chain. And जब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अगर जो हम इसकी बात करें, तो इसके पास 3 एक्टिविटी होती हैं कि ये 5 to 3 डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करा सकता है, 5 to 3 डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो कर सकता है। एक्सोन्यूक्लियस यानी कि रीड करके अगर जो कोई गलत न्यूक्लियोटाइड है तो उसको हटा सकता है। एंड 3 to 5 डायरेक्शन में भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसके अंदर पाई जाती है। जब इस प्रोटीन को सेपरेट किया गया, मतलब इसको थोड़ा सा नमक डालकर साल्टेशन कर करके प्रोटीन की, और उसको जब सेपरेट किया गया तो हमें पता चला कि इसके इट कंटेन 2 फ्रैगमेंट्स। जब को ये कॉर्नबर्ग भाई साहब की डिस्कवरी है कि उसने देखा कि जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है उसके 2 फ्रैगमेंट होते हैं, और उन्होंने उस फ्रैगमेंट को कहा क्लिनो फ्रैगमेंट, जो कि सी टर्मिनल में पाया गया। और इसके पास क्या है, 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, जो कि प्रूफ रीडिंग में यूज की जाती है। किसमें यूज की जाती है? प्रूफ रीडिंग में। और जो इसका एन टर्मिनल था वो एक छोटा है, सी टर्मिनल एक लार्ज बड़ा है, जिसे क्लिनो फ्रैगमेंट कहा गया। और उसके पास एक पॉलीमराइजेशन यूनिट है, मतलब जो बड़ा भाग है उसके पास 5 to 3 और 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। दोनों एक्टिविटी बड़े भाग के पास है। जो उसका सी टर्मिनल एंड है, एन टर्मिनल एंड है, उस पर 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाई गई। तो प्रूफ रीडिंग भी करता है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड भी करता है, और दोनों डायरेक्शन में प्रूफ रीडिंग करता है कि मैंने न्यूक्लियोटाइड जो लगाए हैं वो सही लगाए हैं या गलत लगाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो ऐड करने की जो क्षमता है न्यूक्लियोटाइड डीएनए टेम्पलेट पर, वो मात्र 200 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता, 20 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है पर सेकेंड। अगर जो इस स्पीड से डीएनए की रेप्लिकेशन हो तो बेचारा बैक्टीरिया को कई साल लग जाएंगे। जैसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं कि एक बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेशन करने में अप्रॉक्स 40 मिनट लगा लेता है, और उसके बाद 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है। और बैक्टीरिया में मल्टीपल साइट रेप्लिकेशन चल रही होती है, तो एवरेज जब हम देखते हैं एट लास्ट उसको अच्छा न्यूट्रेंट और टेम्परेचर सब कंडीशन मिल रहा है तो 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है विद रिस्पेक्ट टू रेप्लिकेशन, और सब कुछ करने के बाद अगर जो रेप्लिकेशन चल रही हो। लेकिन अप्रॉक्स एक बैक्टीरिया को अगर जब हम नेचुरली देखते हैं तो 60 मिनट में जा कर के कर पाता है डिवीज़न, 40 मिनट की रेप्लिकेशन और 20 मिनट में उसकी दूसरी प्रोटीन डिवीज़न की। बट एवरेज टाइम जो बैक्टीरिया डिवीज़न का आता है वो 20 मिनट आता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल वो मतलब एक साथ कई डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करके रखता है। डॉटर की डॉटर, तो आगे बढ़ेंगे, उसको थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। थीटा यानी कि यहाँ एक पेरेंट पे चलती रहेगी और एक डॉटर पे चल जाएगी, बाद में देखते हैं उसको। फिलहाल यहाँ पर तो ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज 1। तो इसी तरीके से अब जो भाई साहब थे कॉर्नबर्ग, उन्होंने जो ढूंढा उसके अकॉर्डिंग देखो, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है उसका जो बनाने वाला जीन है वो पॉलीमरेज ए है, डीएनए पॉलीमरेज को बनाने वाला बी है, और पॉलीमरेज सी को बनाने वाला
सॉरी थर्ड को बनाने वाला सी जीन है। इसकी एक यूनिट हो, इसमें सब यूनिट कितनी है पॉलीमरेज 1 में, डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। एक इसमें एक, इसको 10 सब यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये एक होल एंजाइम है। क्या है ये? एक होल एंजाइम है। इसको बहुत सारी और प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके पास 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास, इसके पास भी है और इसके पास भी है। दूसरा, इसके पास 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, लेकिन इसके पास नहीं है, यानी कि ये प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकता 5 to 3 की डायरेक्शन, लेकिन 3 to 5 की डायरेक्शन में कर सकता है। और इसके पास भी नहीं है। पॉलीमराइजेशन रेट देखो, ये 20 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। ये कह रहा है चलो मैं थोड़े फालतू कर लेता हूँ 40 न्यूक्लियोटाइड, लेकिन ये देखो ये कर रहा है 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। व्हाट ए स्पीड! सबसे ज़्यादा स्पीड इस एंजाइम के पास है। अब देखो दूसरा, प्रोसेसिविटी 200 न्यूक्लियोटाइड की स्पीड से चलता है, ये 1500 न्यूक्लियोटाइड, और ये देखो 50,000 न्यूक्लियोटाइड। प्रोसेसिविटी द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ओवर वॉकिंग ओवर द डीएनए टेम्पलेट। फंक्शन इसका डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये डीएनए में रिपेयर करने के काम आता है, गैप फिलिंग करने के काम आता है और प्राइमर को रिमूव करता है। डीएनए पॉलीमरेज 2 डीएनए रिपेयर में काम आता है। एंड मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम कौन है? डीएनए पॉलीमरेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज इन जीआरएफ, है ना, यूसीएसआईआर में इनमें से कोई क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है पुराने टाइम में, और अभी भी आते हैं क्वेश्चन रिपीट हो करके। तो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम कौन है? डीएनए पॉलीमरेज 3। इसके अलावा जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 4 है, ये डीएनबी प्रोटीन से बनाया जाता है, और दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज 5, ये यूएमडी यानी कि एक प्रकार की जो यूवी रेज है उनके में वो रिपेयर करने के काम है। ये दोनों रिपेयरिंग एंजाइम है जो यूज होते हैं। वाई फैमिली डीएनए मेंबर ऑफ वाई फैमिली डू नॉट कंटेन 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती इनके पास। लो कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है, लो प्रोसेसिविटी होती है, लो फिडेलिटी होती है। दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन सिंथेसिस, ट्रांसलेशंस, जो 1-2 न्यूक्लियोटाइड किसी केमिकल या खास करके यूवी रेज की वजह से डैमेज हो जाते हैं तो उसको सही करने में काम आते हैं। और ये बाईपास डैमेज डेट कुड बी अदरवाइज ब्लॉक द नॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ रेप्लिकेशन, तो इनकी यूज होता है। तो दैट इज अबाउट द डीएनए polymerase enzymes. So today we will discuss about the, one time we again revise it. Today we will discuss about the proteins required for DNA replication. तो protein which one is required? DNA A, जो DNA में origin of replication site को recognize करती है। सेकेंड इज द SSB प्रोटीन, जो कि DNA के मेल्ट होने के बाद उसको दोबारा चिपकने से रोकती है। DNA B हेलिकेज का काम करती है, जो कि बॉन्ड को तोड़ती है, हाइड्रोजन बॉन्ड को। DNA C इस हेलिकोज को लोड करवाती है। DNA G जो कि एक RNA का प्राइमर बनाती है। और DNA पॉलीमरेज जो कि DNA में के टेम्पलेट को देख करके DNA बनाता है। तो टोटल 5 प्रकार के DNA पॉलीमरेज देखे गए, जिनमें से DNA पॉलीमरेज 3 जो है पॉलीमराइजेशन करता है। ये तो हो गया। उसके बाद है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट की बात करें तो प्रोकैरियोट में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है वो होती है 245 बेस पेयर की और एक ही होती है। और इसके जो 245 बेस पेयर हैं उनमें जो यूनिट है 13 मर की यूनिट पाई जाती है 3, और एक 9 मर की यूनिट पाई जाती है 5। तो 13 मर की जो यूनिट है उनमें 13 न्यूक्लियोटाइड एक एक जगह पर कॉन्सेंस सीक्वेंस होंगे जो कि कंजर्व होंगे। अगर जो उनमें कोई म्यूटेशन हो जाती है तो रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगी। इसी प्रकार से 9 मर के कुछ 5 यूनिट पाई जाती है जिनमें 9 न्यूक्लियोटाइड कॉन्सेंस सीक्वेंस होंगे। अगर जो उनमें कोई म्यूटेशन होती है तो भी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगी। तो ये एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट को बनाता है, जो कि किस में पाई जाती है? प्रोकैरियोट में। और इसके अपोजिट अगर जो हम बात करते हैं यूकैरियोट में, तो यूकैरियोट में एक रेप्लिकेशन साइट नहीं होती है, बहुत सारी रेप्लिकेशन साइट होती है। जैसे यीस्ट में 400 रेप्लिकेशन साइट पाई गई हैं। कितनी पाई गई हैं? 400। नंबर कितने? 400। और प्रत्येक लेकिन छोटी हैं, देखो 200 बेस पेयर की, जबकि प्रोकैरियोट की कितनी है? 245 बेस पेयर की अभी हमने बात की। अब जो ARS साइट है उसको 3 भागों में बांट गया है, A, B, C। तो जो A पार्ट है यूकैरियोट की रेप्लिकेशन साइट का, इट इज़ कॉन्सेंस सीक्वेंस, जिसमें 11 बेस पेयर पाए जाते हैं जो कि AT रिच होते हैं। और इसमें अगर जो म्यूटेशन हुई तो DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगी। दूसरा अपने पास कौन है? B पार्ट है, जहाँ से मेल्टिंग शुरू होती है। और
एक जो सी पार्ट है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज कराती नए वाली प्रोटीन, जैसे डीएनए प्रोटीन यहाँ पर बाइंड करती है, उसको बाइंड करती है। ठीक है, तो ये है डीएनए रेप्लिकेशन का बेसिक। अभी आगे फिर हम पढ़ेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे शुरू होती है, तो पार्ट 2 आएगा इसका, ये पार्ट 1 है, फिर उसके बाद कंपैरिजन भी आएगा। तो अपनी ये 3 वीडियो हो जाएंगे डीएनए रेप्लिकेशन की, तो आप एक बार देखिए ज़रूर और समझिए।